کیا آپ کو مجھ سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، اور میں اسی وعدے کی تکمیل کے لیے یہاں اس ویرانے میں بیٹھا ہوں۔ بس تو پھر جو بھی حس و حشاک ہیں وہاں پر انہیں صاف کر دو اور واپس پلٹ آؤ۔ مجھے ہی نہیں، کچھ لوگوں کو انتظار ہے۔ ایک پرندہ بڑی اڑان بھر رہا ہے، اس کے لیے جال لگایا ہوا ہے، وہ بس چند دن میں جیسے ہی جال میں آ گیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس چند دن لگیں گے، اس نے کہا، جتنا بھی وقت لگے، دوبارہ وہاں کچھ نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک عزم سے کہا، بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، میں نے کہا اور فون مراد حسن کی جانب بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر شاید مہک کی بات سنتا رہا، پھر فون میری جانب بڑھا دیا۔ دوسری طرف نسوانی آواز گونجی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں؟ میری طرف سے اجازت ہے، میں نے کہا تو وہ خوشی سے بولی، بس ٹھیک ہے، اب میں آ جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ ذہن میں سے ایک بوجھ ہٹا تو میں جے پور کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہاں کھانا کھاتے باتیں کرتے سپہر ہوگی۔ فرید، مراد حسن اور ظفرمند ہسپتال کی جانب چل دیے اور میں حویلی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ مجھے فہیم کا فون ملا۔ اس کے ساتھ اروند اور شمس بھی کانفرنس کال میں تھے۔ چند تمہیدی باتوں کے بعد فہیم نے کہا، آپ جب حویلی جائیں گے تو سلیمان آپ کو کچھ تفصیلات بتائے گا، میں نے ای میل کی ہے، آپ کے پہنچنے تک وہ اسے ڈی کوڈ کر لے گا۔ میں کافی دنوں سے اس پر کام کر رہا تھا، آج اروند اور شمس کی وجہ سے میں نے وہ شے نکال لی ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب وہیں تفصیل سے پتہ چل جائے گا، اروند نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا تو شمس بولا، وہ میجر ارون میری نگاہ میں ہے، اسے کافی کالز کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ حادثہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ یہ سارے رابطے دلہی، چندی گڑھ اور جلندھر سے ہیں۔ بس انہیں 2-3 دن یہیں الجھا دو، خاص طور پر وہ جو چندی گڑھ والے ہیں انہیں سکون نہ آئے۔ میں نے کہا وہ میں سنبھال لوں گا، اروند تیزی سے بولا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور میں نے جلدی سے حویلی پہنچنے کے لیے رفتار بڑھا دی۔ نیا پیراگراف۔ وہ نام کا ہی نہیں، حقیقت میں بھی شہزادہ ہی لگتا تھا، بہت وجیح اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، دراز قد، بھرا بھرا متوازن بدن، گھنے اور سیاہ بال، بڑی سحر انگیز سیاہ آنکھیں، تیکھا ناک، کھلتے ہوئے گندمی رنگت، پتلے پتلے سرخ ہونٹ۔ اس کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں سے تھا جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے والدین لوور مڈل طبقے سے تھے۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا اور ماں گھریلو خاتون تھی۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، ایک بھائی اور بہن ابھی وہیں پڑھ رہے تھے۔ شہزادہ فلرٹ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا دھیان ایسی سرگرمیوں کی جانب تھا۔ لاشعوری طور پر جس بندے کو یہ احساس ہو جائے نا کہ اس کے پاس ایک طاقت ہے تو وہ اسے استعمال کرنے کا بھی ہنر جان ہی جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی اس مردانہ وجاہت کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا تھا۔ شہزادے کے ذہن میں شروع ہی سے یہ سوار تھا کہ اس نے غربت سے نکلنا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کے ذہن میں یہ خیال بٹھا دیا تھا کہ اگر وہ سنجیدگی سے تعلیم حاصل کرے گا تبھی وہ اور اس کا خاندان اس غربت سے نکل سکتا ہے۔ وہ اپنے محدود سے جیب خرچ میں سے اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ذہین طالب علموں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا ارادہ CSS آفیسر بننے کا تھا۔ اس کے لیے وہ سخت محنت کر رہا تھا، لیکن لڑکیوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ وہ ملتان میں موجود ایک یونیورسٹی کا آخری سال میں تھا کہ اس پر ایک امیر زادی عاشق ہو گئی۔ وہ اس پر دیوانہ وار مرتی تھی۔ وہ اس سے 1 برس جونیئر تھی۔ چڑھتی جوانی کا ہمار، امارت کا غرور اور حاکمیت کا نشہ تو اس میں تھا ہی، شکل و صورت سے بھی حسین تھی۔ نہ جانے کب سے اپنے دل میں اس کے لیے چاہت لیے پھرتی تھی۔ جب شہزادے کے فائنل امتحان سر پر آ گئے تو ایک دن شہر کے مضافات میں لمبی ڈرائیو کے دوران اس امیر زادی نے اپنا حال دل اسے کہہ سنایا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بڑے نرم سے انداز میں کہتا چلا گیا، میں اگر تمہاری خواہش کا رد عمل ویسا ہی دوں جیسا تم چاہتی ہو تب بھی ہمارا ساتھ نہیں چل سکتا۔ تمہاری شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسے ہی تمہارے جاگیردار باپ کو پتہ چلا
تو وہ مجھے جان سے مار دے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ جس طرح پرندے کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا، میں بھی جاگیردار کی بیٹی ہوں، تیری جانب کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے آنکھیں نکال لوں گی۔ اور پھر تمہیں کون کہتا ہے شادی کرنے کو؟ امیر زادی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تم صرف میرے رہو، مجھے یہ صرف یقین ہو کہ تم صرف اور میرے ہو، کوئی دوسری تیری زندگی میں نہ آئے، بس۔ اس نے عجیب سخت لہجے میں کہا۔ یہ تم مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ شہزادے نے کہا۔ نہیں، صاحب بنا کر رکھوں گی، بنو تو صحیح۔ اس نے کہا تو امیر زادی کا لہجہ محبت کے رس میں بھیگا ہوا تھا۔ اس پر شہزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم جانتی ہو میری ساری توجہ اپنی پڑھائی پر ہے، مجھ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی ہیں، مجھ سے دوستی چاہتی ہیں، میرے قریب رہنا چاہتی ہیں، لیکن تم ان میں سے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ تمہاری اسی ادا نے تو مجھے مار ڈالا ہے۔ مجھے بھی خاص چیزیں، خاص لوگ اور خاص ماحول پسند ہے۔ تم نہیں جانتے، جو مجھے پسند آ جائے میں اس کے لیے کیا کچھ کرتی ہوں۔ میں نے خاص ادا سے ہنستے ہوئے کہا، یہ جو تم جدی پشتی جاگیردار ہوتے ہو نا، ان کی نہ دشمنی اچھی اور نہ دوستی، کیونکہ جب بھی ان کا مفاد آتا ہے یہ دوستی دشمنی بھول جاتے ہیں۔ میں تمہاری، اس نے کہنا چاہا، مگر امیر زادی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بڑی گہری نگاہ ہے ہم جیسے جاگیرداروں پر، غربت بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری غربت کن کی وجہ سے ہے، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے جو وسائل پر قابض ہیں۔ اسے نفرت سے کہا۔ کچھ اور بھی جانتے ہو؟ اس نے لذت لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس نے سکون سے کہا۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میں جانتی ہوں، جوہری ہی ہیرا کو پرکھ سکتا ہے، اس نے سسکاری بھرتے ہوئے کہا اور نگاہیں سڑک پر جمائے اسے بریک لگا دیے، پھر سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا، آج فیصلہ ہو جائے، تم میری محبت قبول کرتے ہو یا نہیں؟ میرا خیال ہے تم مجھے معاف کر دو، میں کوئی ایڈونچر افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے بیچارگی سے کہا۔ دیکھو میں تم سے کیا چاہتی ہوں، تم مجھے صرف یہ احساس دو کہ تم میرے ہو، کسی کے بھی نہیں۔ جب میرا من چاہے، وقت ہو، تو تم میرے ساتھ یوں ہی گپ شپ کر لیا کرو، میں جب چاہوں مجھے اپنا آپ دکھا دیا کرو، اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، اس نے عجیب بیچارگی سے کہا۔ تو شہزادہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، بس اتنا خیال رکھنا میں اپنی ہی نگاہوں میں گر نہ جاؤں۔ واو، خوش کر دیا تم نے، اس نے یوں چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا جیسے کسی بچے کو اس کا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ اس دن وہ بہت دیر تک اس کے ساتھ رہی، پھر اسے یونیورسٹی کے سامنے چھوڑ کر چلے گئی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ امیرزادی ہفتے میں ایک دن کہیں اسے بلاتی، کچھ دیر گپ شپ کرتی اور چلی جاتی، یہاں تک کہ سب فائنل ختم ہو گیا۔ اس دوران امیرزادی نے اسے بہت ساری رقم دی، کبھی وہ اسے اپنے من پسند کپڑے لینے کا کہتی، کبھی فون سیٹ بدل لینے کے نام پر۔ وہ خاموشی سے لیتا رہا، لیکن امیرزادی نے کبھی اسے تنہائی نہیں مانگی۔ ایسے ہی ایک دن وہ شہر کے مہنگے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہارے امتحان ہو گئے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ امیرزادی نے پوچھا۔ یہاں شہر میں کوئی نوکری تلاش کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ تیاری کروں گا، اس نے کہا۔ نہیں، تم یہاں نہیں رہو گے، بلکہ اسلام آباد جاؤ گے، وہیں رہو، وہیں جا کر تیاری کرو، کسی بھی حرج کی پرواہ مت کرو، وہ میں دے دیا کروں گی۔ اوکے، اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، وہ بحث بھی کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارا ایک بنگلہ ہے وہاں پر، میں بھی پڑھنے کے لیے وہیں آ رہی ہوں۔ اس نے مطلب کی بات کی تو وہ ہنس دیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے اپنا رخت سفر باندھا، وہ اسلام آباد جا پہنچا، وہاں کچھ دوستوں کے ریفرنس سے کچھ لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا، ایک اکیڈمی جوائن کی اور جی جان سے پڑھنے لگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس کی شناسائی بڑھ گئی، ہرن کے نافے میں کستوری کی مہک والا معاملہ ہوا۔ یہاں بھی شہزادے پر کئی نگاہیں مست ہو گئی، بہت سو میں دوڑ لگ گئی کہ کون اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پر نوازشات کی بارش ہونے لگی، مگر شہزادہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ان سب کے ساتھ
होटलों में जाता, रेस्तोरांों में खाने चलते, लॉन्ग ड्राइव पर भी चला जाता, लेकिन एक हद में रहता। अमीरजादी का भी खौफ था, अगर उसे पता चल जाता तो सब कुछ खत्म होके रह जाता। उसकी एकेडमी में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की की बड़ी बहन की शादी थी। दूसरे दोस्तों की तरह उसे भी दावत दी गई। वो अपने दोस्तों के साथ वहां जा पहुंचा। शहर के सबसे महंगे होटल में दावत का एहतमाम किया गया था। बहुत सारे आले ओहदेदार वाले वहां पर आए हुए थे, जिनमें वजीर, सफीर भी थे। शहजादा अपने दोस्तों के हमरा खुशकपिया करता रहा। ऐसे में अपनी एकेडमी फेलो लड़की के साथ एक उधेड़ उम्र खातून उनके पास आ गई। उसने उधेड़ उम्र खातून का तारुफ कराते हुए कहा, आप हैं गायत्री देवी, भारत से। यहाँ पर सफारत आने में एक आला ओहदे पर फायज हैं। तारुफ के साथ ही गायत्री देवी ने दोनों हाथों से सबको नमस्कार किया, फिर बड़े रसान से बोली, बहुत खुशी हुई आप सब नौजवानों से मिलकर। मैं सिर्फ एक सफारतकार ही नहीं, बल्कि हिंदू पाक की सकाफत और समाजियात पर तहकीक भी करती हूँ। इसके लिए मुझे दोनों ममालिक के नौजवानों से राब्ते की बड़ी जरूरत रहती है, ताकि मेरी तहकीक में मेरी मदद कर सकें। मैडम, इसके लिए कोई खास सर्वे करना होता है? किताबें? एक नौजवान ने पूछना चाहा तो वो तेजी से बात कता करते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, नहीं, महज गपशप होती है। फिर कोई मौजू चुनकर उस पर आगे जो भी तहकीक हो, इसमें कोई भी जरिया अपनाया जा सकता है। ये महज शौक है या आप इसका कुछ मुआवजा भी देती हैं? एक लड़की ने पूछा। बिल्कुल, जो मेहनत करता है उसे मुआवजा तो मिलता है। खैर, आप आए हमारे पास, वहां बैठेंगे, तफसीली बात हो जाएगी। अगर आपकी दिलचस्पी हुई तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लेंगे। गायत्री देवी ने बड़े रसान से कहा, फिर चंद अलविदाई बातों के बाद चली गई। शहजादे की गायत्री देवी से ये पहली अजनबी सी मुलाकात थी, जिसमें एक लफ्ज तक का तबादला नहीं हुआ था। गायत्री देवी ने उसे कद की फरमामाइल थी, हल्के से बढ़े हुए पेट और भारी गोलों से वो यूं दिखाई देती जैसे सारा बदन एक जैसा ही हो। उसके नेक नक्श मोटे और भद्दे थे, सिर्फ उसकी आंखें बहुत चमकती हुई और हसीन थी। शोल्डर कट बालों को वो रंगा कर रखती थी। तकरीबन एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि वो चंद दोस्त उसके पास जा पहुंचे। मुलाकात तय थी, सो गायत्री देवी ने इन सब की बड़ी आवभगत की, यहाँ तक कि उसने 3 प्रोजेक्ट दे दिए, जो यही सकाफत और समाजियात के हवाले से ही थे। बाकायदा फोन नंबर ले लिए गए, थोड़ी सी रकम भी इनके हवाले कर दी गई। तय ये पाया कि हर हफ्ते एक बार मुलाकात होगी। इस सारे दौरानिये में शहजादा भांप गया कि गायत्री देवी इसमें दिलचस्पी ले रही है। ये इसके लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी, ताहम एक शक था। लेकिन अगर ये 4 मुलाकातों में यकीन हो गया कि ये गायत्री देवी इसमें पूरी तरह दिलचस्पी ले रही है। फिर वो दिन आ गया जब गायत्री देवी ने शहजादे को अकेले में बुला लिया। उसने शहजादे को खूबसूरत फूलों वाले लॉन के एक गोशे में बिठाया। बातों ही बातों में उसे पता चल गया था कि शहजादे की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। उसने शहजादे के सामने बाहर की दुनिया, बिजनेस और दौलत कमाने का वो मंजर दिखाया कि इसे लगा कि ये सीएसएस की नौकरी तो कुछ भी नहीं। गायत्री देवी ने ढके छुपे लफ्जों में उसे ये समझा दिया था कि अगर वो ये सब कुछ चाहता है तो उसे मिल भी सकता है। इसके अवज वो गायत्री देवी की बदनी जरूरत को पूरा करना होगा। यही वो लम्हा था जब शहजादा बिदक गया। उसने अपनी अंदरूनी कैफियत का जरा सा भी इजहार नहीं किया और कुछ देर बाद वहां से उठ गया। उसे सब समझ में आ गया था। चंद दिन बाद वो एकेडमी से निकला और पैदल ही अपने घर की जानिब जा रहा था। इन्हीं लम्हात में उसे अमीरजादी का फोन मिला। उसने बताया कि वो इस्लामाबाद आ चुकी है, वो इसे मिलना चाहती है। उसने एक खास पॉइंट बताया जहां से वो इसे पिक कर लेगी। 1 घंटे के बाद वो तैयार होकर उसे वहां मिले। शहजादा तैयार होकर वहां पहुंच गया। अमीरजादी एक महंगी स्याह कार में सवार थी। उसे साथ बिठाया और चल दी। उसका रुख मरी की जानिब था। रास्ते में उसने सारी बेताबियों का इजहार कर डाला। तभी शहजादे को एहसास हुआ कि गायत्री देवी के साथ इसके ताल्लुक बारे अगर इसे पता चल गया तो ये क्या तूफान खड़ा करेगी। अमीरजादी इसे लेकर एक मरी के मज़ाफात में मौजूद एक बंगले में ले गई। पोर्च में कार रुकी तो शहजादे को लगा यहाँ कोई भी नहीं है। वो इसके साथ उतरकर अंदर शानदार लाउंज में चला गया।
वहां भी कोई नहीं था। अमीरजादी ने अपना गाउन उतारा और उसके सामने एक सोफे पर बैठ गई। उसने अपर लेस स्याह डिनर सूट पहना हुआ था। उसने बैठने का अंदाज शाहाना था। पहले कभी उसने यूं इस तरह उसको बेबाकाना अंदाज नहीं अपनाया था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोले, शहजादे तुम बहुत मासूम और भोले हो। खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। समझो ये भी खुदा की तुम पर मेहरबानी है। बिलाशुबा तुम्हें इसका बहुत ज्यादा बदला मिलेगा। ये तुम कहना क्या चाह रही हो? उसे हैरत से पूछा तो वो बोली, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें पूरे दिलो जान से चाहती हूँ। तुम मेरे हाबू के शहजादे हो। एक औरत होने के नाते तुम में जो कशिश है उसका तुम अंदाजा कर सकते हो। लेकिन क्या? उसने पूछा। बावजूद वक्त, मौका और माहौल होने के बावजूद मैंने कभी तुमसे अपनी बदन की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? उसने पूछा। यही कि तुम्हारा अच्छापन। और उसने कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर बोली, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा फर्ज मुझे इस तरह के मामलात की इजाजत नहीं देता। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मैं किसी जागीरदार की बेटी नहीं हूँ। क्या कहा? शहजादे की आंखें हैरत से उबल पड़ी। उसे चंद लम्हे यूं ही हैरत में रहने के बाद पूछा, फिर वो उनके घर किस तरह? मुझे अपनी हवेली में रखना उनकी मजबूरी थी। मैं वहां पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर थी, लेकिन दुनिया के सामने अपनी हैसियत छुपाने को मैंने उनकी बेटी जाहिर किया। और ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। खैर इस कहानी को छोड़ो, मुझे बताओ मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कितने अरसे से है? याद है तुम्हें? यही कोई 5-6 माह से। उसने बताया। बहुत सारे हसीन से हसीन नौजवान यहाँ पड़े हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जिसे खास मकसद के लिए चुना गया है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो ठीक, वरना तुम खामोशी से अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम्हें ये सब भूल जाना होगा। हाँ, मगर याद रखने और होंठों से बात निकालना जुर्म होगा। मैं अब तक नहीं समझा, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने उलझे हुए पूछा तो बुरी तरह उलझ गया था। पिछले 1 बरस से मैं मुल्तान में हूँ और ड्यूटी दे रही हूँ। और रुको जरा, ये ड्यूटी? उसने तेजी से पूछा। उसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। अमीरजादी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, फिर चंद लम्हे रुक कर बोली, मुझे यह हदफ मिला कि मैं तुम्हें अपने करीब करूं, तुम्हें परखूं। मैंने तुम्हें अपने करीब किया। तुम हमारे म्यार पर पूरे उतरे, क्योंकि तकरीबन 8 माह से हम गायत्री देवी को देख रहे थे। उसकी कमजोरी तुम जैसे वजीह, खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान हैं। तुम्हें यहाँ भेजा गया। गायत्री देवी की निगाह तुम पर पड़ गई और वो तुम्हें अपने करीब करने की पूरी कोशिश में है। ओह, शहजादे के मुंह से सरसराते हुए निकला। वो बदसूरत, भद्दी, बदकमाश गायत्री देवी तुम जैसे लड़कों को देखकर पागल हो जाती है। हम चाहते हैं कि तुम उसे पूरी तरह पागल करो। वो जो चाहती है वही करो। उसके दिल, दिमाग और हाथों पर इस कदर छा जाओ कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ भी दिखाई न दे। वो तुम्हें किसी दूसरे मुल्क में खुफिया तौर पर बुलाएगी। जाओ, क्योंकि वहीं पर तुम्हें वो मौका मिलेगा जो हम चाहते हैं। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? उसने पूछा। वो एक मोहरा है, राका। बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट्स उसके जरिए जाती हैं। वो कोड में होती हैं। हम तुम्हें बताएंगे डिकोड कैसे करते हैं। जब तक मुमकिन हो उससे मालूमात निकालते रहो। आखिरकार अमीरजादी ने अपना मुद्दा कह दिया। शहजादा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, मैं नहीं जानता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मेरा वतन मुझसे ये हिदमत लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। मैं अगर इस राह में मारा भी गया तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं अपना फर्ज अदा करके मरूंगा। उसने कहा तो अमीरजादी का चेहरा खिल उठा। वो बड़े शाहाना अंदाज में उठी, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा किया। वो उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। फिर भीगे हुए लहजे में बोली, शहजादे तुमने मुझे सुरखरू कर दिया। तुम वाकई ही शहजादे हो। लफ्जों की नरमाहट भरी गूंज अभी तहलील नहीं हुई थी कि अंदर से एक दराज कद खातून लाउंज में आ गई। उसके साथ वो वजीह शख्स भी था। वो भी इन्हीं की तरह डिनर सूट में था। उन्होंने हाथ मिलाया, फिर कोई बात किए बिना खाना खाने की मेज तक जा पहुंचे।
जो लवाजमात से बड़ी परी थी। वहां बैठते ही उनके दरमियान बातें शुरू हो गईं। वो दोनों इसे बहुत कुछ समझा चुके थे, वो बातें भी जो आने वाले दिनों में इसके सामने आना थी। तकरीबन 1.5 माह गुजर गया। शहजादी को अमीरजादी नहीं मिली, मगर इसका राब्ता फोन पर रहता था। लेकिन इस दौरान वो गायत्री देवी के साथ 2 बार दुबई गया था। एक बार मैच देखने और दूसरी बात शॉपिंग का बहाना था। वो हफ्ते में 2 दिन उसके साथ गुजारता। यूं वो उसके दिलो दिमाग और हवासों पर छा गया। नया पैराग्राफ। गीत और सलेमान मेरे सामने बैठे हुए थे। शम्स की भेजी हुई ईमेल की सारी मालूमात वो मुझे दे रहे थे। उनके साथ मुराद अली भी बैठा था। यहां तक कि सारी बात सुनने के बाद पूछा, ये तो हो गई शहजादे की बात, अच्छा आगे क्या हुआ? शहजादे ने अगले 2 माह में गायत्री देवी से जो मालूमात निकाली, उनके मुताबिक रा अपने 2 बड़े ऑपरेशन करने जा रही थी। एक बलोचिस्तान में किस तरह आग लगानी थी, उसकी पूरी तफसीलात तो वो हासिल न कर सका, लेकिन ये जो आपने वसात शाह वाला वाकया सामने आया है, इसके पस मंजर में बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है। यही वो रास्ता था जहां से जो लोग यहां पहुंच चुके हैं, वो इन रा वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने पूछा, दूसरा पंजाब में से इन लोगों को ताकत मुहैया करनी थी जो खालिस्तान के खिलाफ हुकूमत पर दबाव डालें और भारत सरकार की मदद करें। रा वाले ये समझते हैं कि अगर वो बलूचिस्तान कार्रवाई करेंगे तो भारतीय पंजाब में भी कार्रवाई होगी। सलमान ने बताया तो मैंने कहा, मतलब अब हमारे लिए 2 महाज वक्त खुल गए हैं। कोई बात नहीं, रब ताला मदद करेगा। खैर, शम्स ने ये बहुत बड़ा काम किया जो ये रिपोर्ट निकाल ली। सलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे शहजादा कहाँ है? गीत ने आंख मारते हुए कहा तो सभी हंस पड़े। पता करते हैं, कहीं मिल जाए तुम्हारे लिए। सलमान ने इसे छेड़ते हुए कहा तो फिर सब इसी पर तबसरा करते रहे। तभी हम सबको रात के खाने के लिए बुला लिया गया। नया पैराग्राफ। जयपुर की एक शनाख्त पिंक सिटी होना भी है। उस शहर में सियाहत के लिए बहुत सारे लोग सारा साल आते जाते रहते हैं। राजस्थान का दारुल हुकूमत और पुराना शहर होने के बायस बहुत तरक्की कर चुका है। इसी शहर में घनश्याम राव रहता था। उसका शुमार शहर के मशहूर ताजरों में से था। उसकी बड़े वहां की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। अगरचे शहर में उसने कई बड़े घर बनाए थे, शॉपिंग मॉल भी था, कई बिजनेस के दफातर थे, लेकिन आज भी वो देवजी मंदिर के पास अपनी पुरानी हवेली में रहता था। उसका खानदान भी वही रिहाइश पजीर था। हवेली में वो इसकी किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं थी। वो अपनी तजारती सरगर्मियों की आड़ में राह के सारे मामला देखता था। इसके इसे 2 फायदे थे। पूरे राजस्थान में उसने जो बिजनेस फैलाया था, उसी को रोकने टोकने वाला नहीं था। उसने वहां की मकामी सियासत को जकड़ा हुआ था। बाहर थी सियासत, और खास तौर पर उन इलाकों की सियासत में गुंडागर्दी, मार धाड़ और गिराव जुलाव बहुत अहमियत रखती है। जो जितना बड़ा गुंडा होगा, वो इतना बड़ा सियासतदान कहलाता है। घनश्याम राव भी ऐसा ही था। उसके एवज वो पूरी तरह रा के मफादात के लिए काम करता था। यूं उसे पूरे इलाके पर हाकमियत बनाने की खुली छुट्टी मिली हुई थी। वो 10 के 10 जयपुर के मुख्तलिफ होटलों में पहुंच चुके थे। उनका राब्ता मुकामी स्लीपर सेल से हो चुका था। जसपाल सिंह ने अपनी शनाख्त तब्दील कर ली हुई थी। वो और नीति सिंह मिस्टर और मिसेस गुप्ता सम्राट बनकर एक होटल में मौजूद थे। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि इन होटलों में आने और रहने वाले खुफिया के लोगों की निगाह में होते हैं, लेकिन इतनी भी बारीक बीनी नहीं होती। हाँ, मगर मशकूक जगह रहने और हामहा छुप कर रहने में वो मशकूक जरूर होते। उनका हदम घनश्याम राव था, जिसके बारे में उन्हें ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे वो कोई अपना प्लान बना सके। जसपाल सिंह होटल के कमरे में लेटा हुआ था। इसके पाइंती की जानिब नीति कवर बैठी हुई थी। उसके सामने लैपटॉप था और वो उसमें खोई हुई थी। ऐसे में जसपाल सिंह के फोन पर रोनीत कंवर का फोन आ गया। कैसे हो मिस्टर गुप्ता जी महाराज? उसने शोही से कहा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन यह खबर हरप्रीत को ना दे देना, वरना फौरन हुक्म दे देगी कि घर वापस आ जाओ। करती हूं ठीक। उसके मजाक के अंदाज में कहा तो रोनीत हंस दी।
वैसे कहाँ है मिसेस गुप्ता, जरा फोन देना उसको। उसने कहा तो जसपाल हंसते हुए बोला, देखो कोई बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी, अच्छा फोन तो दो। वो हंसते हुए बोली। तो जसपाल ने फोन नीति कंवर की जानिब बढ़ा दिया। उसने फोन लेते हुए हेलो कहा, फिर चंद लम्हे सुनते रहने के बाद मुस्कुराते हुए स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी जानब हरप्रीत बात कर रही थी। वो कह रही थी, इसका बहुत ख्याल रखना। मेरा नहीं ख्याल कोई बदमाशी करेगा, लेकिन अगर करे तो बिल्कुल इजाजत है। इसके साथ जो मर्जी करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबू, मेरा बड़ा दिल किया था कि गुप्ता जी मेरे साथ कोई बदमाशी करें, लेकिन करते ही नहीं, उसने कहा। तो दूसरी जानब रुनीत और हरप्रीत का मुश्तरका कहका बुलंद हुआ। नीति एक तरफ मुझे भाभी कह रही है, और पता है भाई की बीवी को भाभी कहते हैं। ये मेरे लिए ऐसे ही हैं, अब मजबूरी है, क्या करें। नीति कंवर ने कहा। तो काल में संजीदगी छा गई। तभी रुनीत ने कहा, फोन दो जरा इसे। नीति ने स्पीकर बंद करके फोन उसके जाने बढ़ा दिया। हाँ बोल। जसपाल ने कहा, राव का जाती फोन ट्रेस हो गया है, लेकिन वो फोन हमेशा उसके सेक्रेटरी के पास होता है। वो अपने पास फोन नहीं रखता, इससे उसकी मूवमेंट का अंदाजा हो रहा है। मुमकिन है आज रात कुछ कंफर्म हो जाए। हाँ, ये तभी होगा जब कोई प्लान बना पाएंगे। जसपाल ने कहा, बाकी सबकी कोशिश है, आज रात कुछ न कुछ कामयाबी जरूर होगी। ले ये बात करें, रोनीत ने कहा, और फोन पे हरप्रीत की आवाज गूंजी। उसने कुछ देर तक बातें करते रहने के बाद फोन बंद कर दिया। जसपाल सिंह पूरी रात किसी भी मुतवक्का काल का इंतजार करता रहा, लेकिन रात बेपांव खामोशी से बीत गई। सुबह की नीलगो रोशनी आन पहुंची। नीति कंवर बेड पर नहीं थी, वो बेचैन था। उसे अपने कमरे से टेरेस तक चला गया तो जयपुर की फजा उसके सामने थी। यूं तो हर शहर का मंजर तकरीबन एक जैसा ही लगता है, लेकिन इस शहर से जुड़ा हुआ एहसास ही उसे इनफरादियत बख्शता है। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर पलटकर एक कुर्सी पर आन बैठा। इतनी में नीति कंवर फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसका दमकता हुआ गुलाबी चेहरा स्याह बालों में बहुत हसीन लग रहा था। ऐसे ही वक्त में जसपाल सिंह ने अंदर कहीं दुख की लहर फैल गई। ये जो खूबसूरत, तवाना और बहादुर कौम के नौजवान हैं, इन्हें अपनी कौम की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन कितना बड़ा जुल्म है कि वो अपनी आजादी के लिए जंग करने पर मजबूर है। कितने महान नौजवान हैं ये जो अपनी कौम के मुस्तकबिल पर अपना हाल त्याग चुके हैं। वो अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर लिए निकल पड़े हैं। किसी ने इन्हें गुलाम कौम होने का एहसास दिलाया, जिसके लिए वो मरने मारने पर तुल गए। ये सिख कौम के इन नौजवानों से कई महान हैं जो नशे में डूबे गलियों, चौराहों और सड़कों पर जलील हो रहे हैं। किसी भी कौम का जो इतिहास उसके नौजवानों को मिलता है, वो उसके बड़े बनाते हैं। बिलाशुबा सिख कौम का इतिहास बन चुका था कि किसी दूसरे ने नहीं, इस कौम के बड़ों ने अपने गलत फैसलों से नौजवानों को गुलाम बना दिया था। जिस तरह आजादी एक दिन में नहीं मिलती, इसी तरह गुलामी भी एक दिन में नहीं आ जाती। क्या सोच रहे हैं आप? नीति कंवर ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम नाश्ते का ऑर्डर दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा और उठ गया। वो जयपुर में सियाहत की गरज से आए थे। उन्होंने होटल वालों के टूर्स एजेंसी को जयपुर की सैर करवाने के लिए रकम दी हुई थी। एक दिन उसी सियाहत में गुजर गया था। जसपाल सिंह और नीति कंवर सारा दिन जयपुर घूमते रहे थे। बलवान सिंह और बुलजीत कंवर भी इनके साथ साथ रहे, लेकिन अजनबी बनकर। सारा दिन उन्हें मुख्तलिफ जगहों से कोई न कोई मालूमात मिलती रही। वो सब लोग घनश्याम राव के बारे में बताते तो सही, लेकिन वो बहुत अहम नहीं थी कि इनकी बुनियाद पर किसी कार्रवाई को कोई फैसला किया जाता। इस सुबह भी वो बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। टूर्स एजेंसी का नुमाइंदा नीचे लॉबी में इनका इंतजार कर रहा था। इन्हीं लम्हात में अकाल सिंह को फोन से मिला। उसने कामयाबी की रिपोर्ट दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने नीति कंवर को बताया। जवाहर नगर के इलाके में एक 4 एकड़ का बंगला था। वहां पर चंद मुलाजमीन के सिवा कोई नहीं रहता था। वो घनश्याम राव की मलकियत था। वो वहां पर हफ्ते में एक दिन जरूर आता था। उसके साथ उसके करीब 3 दोस्त होते थे। उनके साथ एक खातून सियासतदान भी होती थी।
بظاہر وہ سیاستدان تھی، لیکن جے پور کی سب سے بڑی کال گرل سپلائی کرنے والوں میں سے ایک تھی۔ وہ وہاں پر اپنے ساتھ 2-3 لڑکیاں لے آتی، رات بھر عیاشی ہوتی۔ کبھی کبھی گھنشیام راؤ وہیں رک جاتا اور کبھی رات کے آخری پہر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ وہاں پر جو ملازمین تھے ان میں سے ایک ملازم جے رام بھی تھا، جو نچلی ذات کا دلت تھا۔ وہ نہ جانے کم سے گھنشیام راؤ کے بارے میں اپنے من میں نفرت چھپائے ہوئے تھا۔ یہ ساری معلومات اس نے دی تھی۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ جس شام اس نے آنا ہوتا ہے، اس کے آنے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے بتا دیا جاتا تھا، تاکہ وہاں ایک باورچی سارے انتظام کر لے۔ وہ شراب کے ساتھ کھانے کا بھی اہتمام کر لیتا تھا۔ ایک بار رہائشی کمروں کی دوبارہ سے صفائی ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنے برسوں سے چل رہا تھا۔ جے رام کے مطابق ہفتے میں سے 4 دن گزر گئے تھے، باقی 3 دن بچے تھے۔ ان میں سے وہ کسی بھی دن یہاں آ سکتا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ جب بھی آتا، اس کے بارے میں پتہ اسی وقت چلنا تھا۔ جب وہ اپنے آنے کے بارے میں بتاتا، تبھی کوئی لاہے عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، پھر آج باہر نہ جایا جائے؟ نیتی کنور نے پوچھا۔ نہیں، ہم جائیں گے، وہاں بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ البتہ تم ایسا کرو، اس جگہ کی ریکی کرنے کا اکال سنگھ کو کہہ دو۔ اگر ممکن ہو تو اس جے رام کو اچھی طرح جانچ لیا جائے، چاہے اس میں 1 دن مزید لگ جائے۔ جسپال نے سمجھایا تو وہ اکال سنگھ کو کال کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔